MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. محترم حاضرین، درس شروع کرنے سے پہلے میں دو چیزوں پر تنبیہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آخری عشرے میں جو معمول تھا، جو آپ کا طریقہ عبادت تھا، بچے وہ صرف اور صرف قیام اللیل تھا، یعنی رات کو تراویح کی نماز پڑھنا یا تہجد پڑھنا یا کہنے قیام اللیل کرنا۔ اس کے علاوہ، نماز پڑھنے کے علاوہ، قرآن کی تلاوت کے علاوہ، دعا اور اذکار کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کا اور کوئی عمل ان طاق راتوں میں یا آخری 10 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام اللیل، قرأت قرآن، کیونکہ جبریل روزانہ آتے تھے، اور آخری سال آپ 2 پارہ جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، مدارسہ کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار اور دعا، ان 4 چیزوں کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اور عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ سنت میں داخل نہیں ہے، وہ سنت میں داخل نہیں ہے۔ بات میں بہت کڑوی ذرا بول رہا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں قرآن و حدیث کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات بھر جو 2 4 گھنٹہ 2 4 مقررین حضرات کو مسجدوں کے اندر دعوت دی جاتی ہے، اور 4 گھنٹہ جو تقریر کرائی جاتی ہے، یا وعظ و نصیحت ہی کہہ لیں آپ اپنے لفظوں میں، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، اور یہ سنت ہے بھی نہیں، یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی عالم اس کو سنت ثابت نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھی عالم نہیں ثابت کر سکتا ہے، کہیں بھی، کسی بھی، بلکہ ضعیف حدیث میں میرے خیال سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ 2 4 گھنٹہ تقریر کی جائے اور اسی بہانے رات جاگ کر گزاری جائے۔ نہیں، یہ طریقہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اور یہ بھی جان لیں، 1 گھنٹہ بھی تقریر یہ بھی سنت نہیں ہے، یہ بھی جان لیں۔ صرف 4 گھنٹے والی تقریر بدعت نہیں ہے، 1 گھنٹے والی بھی تقریر یہ سنت نہیں ہے۔ یہ طاق راتوں کا حصہ، جاگنے کا حصہ نہیں ہے،
ताक रातों में जो इबादतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे उसमें से ये नहीं है। अलबत्ता अब आप कहेंगे मौलवी साहब तो क्यों बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं आप, है? ये सवाल उठ सकता है, भाई जब 1 घंटा भी नबी की ये सुन्नत नहीं है ताक रातों में कि आप ये भी करते थे ताक रातों में, या आखिरी 10 रातों में आप जागते थे इबादत करते थे तो ये भी करते थे, नहीं। यहां सिर्फ आपके लिए ये जो तकरीर की जा रही है उसका वाहिद मकसद क्या है, कुछ तरगीब और तरहीब, आपको नेकियों की तरफ दावत देना और बुरी चीजों से या बुराइयों से गुनाहों से बचने की क्या है, गुनाहों से बचने के लिए आपको डराना। तरगीब लोगों को लुभाना, लोगों को नेकियों की तरफ बुलाना, और तरहीब लोगों को डराना। ये इस मकसद से कि कुछ दूसरे दिनों के बनिस्बत इस दिन या दूसरे रातों के बनिस्बत इस रात को लोग ज्यादा जमा होते हैं, तो इस इज्तिमा को मुनासिब समझते हुए ताक रातों में इबादतों में जज्बा पैदा करने के लिए चंद बातें आपके सामने कही जाती हैं, ताकि इससे हमारी इबादतों में हमारे अंदर शौक पैदा हो, जज्बा पैदा हो, कुछ हमको क्या है तज़कीर और नसीहत की जाए। हो सकता है कोई बात असर कर जाए और आदमी वो रात अल्लाह की इबादत में गुजारे। इस नीयत से मैं आपके सामने बैठा हूं, वरना ये आप समझे कि ये भी सुन्नत है, ये भी इबादत का हिस्सा है ताक रातों में, नहीं नहीं। अगर ये कोई समझता है तो वो बिदात है। इस नीयत से अगर कोई तकरीर करता है या इस नीयत से तकरीर कराई जाती है कि ये भी एक हिस्सा है, ये भी सुन्नत है, ये भी नबी का अमल है, तो ये बिदात है मेरे भाइयों, ये बिदात है। इसके जरिए हम लैलतुल क़द्र को ये सोचें कि उसकी फजीलत को हासिल कर लेंगे, नहीं। इसके जरिए हमको लैलतुल क़द्र की फजीलत हासिल नहीं करनी है। और दूसरी बात, ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो खाने पीने का ताक रातों में इंतजाम किया जाता है, ये भी अमल ना तो नबी से साबित है, ना सहाबा से साबित है, और ना सलफ़े सालिहीन से साबित है, ना अइम्मे किराम से मुहद्दिसीन से साबित है। गौर से सुने ये बातें, ये किसी से साबित नहीं है। और मजीद उस पर ये कि लोगों की जहां पर जरूरत भी नहीं होती, अब देखिए गैर दिनों में यानी ताक रातों के अलावा, देखिए हमने खुद देखा, यहां पर मैं मुशाहिदा किया हूं कि ताक रातों के अलावा दिन में यहां खाना बना 2-4 मरतबा दावतें दी गई लोगों को, लेकिन वहां भी एक जग पानी के लिए कोई मौजूद नहीं रहता था। वही पकाती जो है, खाने जो पकाने वाले हैं उनको सारा सामान दे दिया गया, वो वहां खड़े होकर बना रहे हैं, मैं यहां देख रहा हूं बैठ के। लेकिन ताक रातों में जब वही खाना बनाया जाता है तो उसके पीछे 10 से 15 लोग वहां रहते हैं, 10 से 15 लोग वहां पर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्या इस तरह रात जागना है? लैलतुल क़द्र की अज़मत और उसकी फजीलत, उसकी रहमत और बरकत इस तरह हासिल करना है? क्या वजह है बताइए मुझे। अगर इन वजूहात को देखा जाए तो मैं नहीं बल्कि अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी जो साहिबे तुहफतुल अहवदी हैं, मिरक़ातुल मफातिह जो मसाबिह की उन्होंने शरह लिखी है, उन्होंने कहा कि रात को खाने पकाने, दावत देने लेने, अगर इन्हीं रातों में इस तरह कोई अगर रात जाग कर गुजारता है तो ये तरीका बिदात है। ये तरीका क्या है? बिदात है। और जो हमारे यहाँ ये जोरों शोर से चलता था रातों में, जोरों शोर से नमाज चल रही है उसमें भी सब लोग बिजी हैं, नमाज चल रही है बिजी हैं सब उसमें भी। क्या जरूरत है भी वहां आपकी है? क्या आपका काम है? आप पकाती के हवाले कर दिए सामान, वो अपना बनाता, आप वहां क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? क्या वो भी इबादत है? क्या वो भी इबादत का हिस्सा है? वो भी ताक रात का काम है क्या? आपका काम है इबादत करना। अगर रात जागना है तो इबादत करके रात जागिए, वरना घर में जाके सो जाइए, वो आपके लिए बेहतर है।
आपके लिए बेहतर है। तो ये खाने पीने का जो इंतजाम किया जाता है, मैं माजरत के साथ, माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह रात गुजारना है, इस तरह खाने का इंतजाम करना है, तो बंद कर दें, बंद कर दें खाना पीना। क्यों? क्योंकि हम दूसरों को मशगूल करने का सबब बन रहे हैं। हम सबब बन रहे हैं कि लोग वहां मशगूल रहें, इबादतें छोड़कर, तिलावत छोड़कर, अज़कार छोड़कर, नमाज छोड़कर वहां मशगूल रहें खाने पकाने में। हालांकि मतलूब क्या है ताक़रातों में? इबादत। और इबादत के बजाय हम वहां खाना देख रहे हैं, कैसे बन रहा है, कैसे पक रहा है, कितना मसाला जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या भाई ये सब है? इसलिए ताक़रात बनी है। तो ये दूसरी बात है, मेरी दूसरी तंबीह है। ये बात कड़वी है लेकिन ये हक बात है और सच बात है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज साबित नहीं। देखिए, लेकिन उसके बिलमुकाबिल मैं एक बात कहूंगा कि मैं जहां तक समझता हूं, ये मस्जिद वाले जो इंतजाम करते हैं, इस नियत से शायद करते हैं कि ताकि घरों में खाने बनाने की तकलीफ लोगों को ना हो और रात मस्जिद में गुजारें अल्लाह की इबादत में, नमाज में, तिलावत में, दुआ व मुनाजात में। इसलिए शायद खाने का इंतजाम किया जाता है, लेकिन लोगों ने उसका मकसद ही बदल दिया है। अगर यह नियत है कि ताकि लोगों को खाने पकाने की जहमत ना उठानी पड़े, लोगों को उसमें वक्त ना देना पड़े, बल्कि इबादत के लिए वक्त अपना निकाल लें, क्योंकि खाना आपके लिए सहरी का इंतजाम किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि आप सहरी तक अल्लाह की इबादत करें, तिलावत करें, ज़िक्र व अस्कार करें, दुआ करें, नमाजें पढ़ें। लेकिन अगर उसका अलग मकसद है तो मेरे भाइयों ये समझ लीजिए वो खाना आपके हक में बेहतर है कि बंद कर दें, ऐसी दावतों का इंतजाम ना करें, क्योंकि आप सबब बन रहे हैं लोगों को इबादतों से दूर करने का, आप सबब बन रहे हैं लोगों को क़िराअते कुरान से दूर करने का, आप सबब बन रहे हैं नमाज छोड़ने का, आप सबब बन रहे हैं लोगों को मस्जिद से दूर रखने का। तो जाहिर सी बात है जो सबब बनेगा उसमें शरीक होगा। तो अगर नीयत सिर्फ ये है और सिर्फ नीयत से काम नहीं चलता, बल्कि दूसरे लोगों को भी अपने अमल से बावर कराने की जरूरत है कि खाना सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किचन की मसरूफियात और मशगूलियात से फारिग होकर यहां अल्लाह की इबादत कर सकें। इबादत में आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए खाने का इंतजाम किया जाता है, ना कि उसका यह मकसद है कि क्या है पूरी रात खाने में, पकाने में, खिलाने में इस तरह गुजार दी जाए। मेरे भाइयों, इससे लैलतुल क़द्र की फजीलत हासिल नहीं होगी। और लैलतुल क़द्र इसलिए नहीं आती कि खाया पकाया जाए, इंतजाम किया जाए। ये दूसरी हमारी तंबीह है, इन दोनों चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है। और इसी तरीके से एक तीसरी चीज, हम लोग क्या है, लोगों को ये समझते हैं कि उनको ऐसा पाबंद कर दिया जाए कि वो रात मस्जिद में ही गुजारें। अच्छी बात है, मस्जिद में गुजारना चाहिए, इबादत करके मस्जिद ही में गुजारना चाहिए रात लैलतुल क़द्र की। और इसी बुनियाद पर हम नमाजों का टाइम टेबल भी चेंज करते हैं, नमाजों के औकात भी बदल देते हैं, इस नियत से कि हो सकता है इसी बहाने लोग क्या है इबादत में मस्जिदों में रात गुजारें। लेकिन क्या वो मकसद हासिल हो रहा है? कोई बताए? देखिए कितने लोग हैं मौजूद, कितने लोग मौजूद हैं। अगर इसकी सफ बनाई जाए तो क्या 2 से 3 सफ होगी? नहीं होगी। और हमारे पास तरावी में कहां तक थे? वहां तक थे। कहां गए वो लोग? क्या मकसद वो हासिल हुआ हमारा? नहीं हासिल हुआ। इसीलिए जो नबवी तरीका है, आप चाहे 10 बजे तरावी शुरू करें, चाहे 11 बजे तरावी शुरू करें, एक साथ पूरी तरावी नमाज पढ़ लें, लोगों को आजाद छोड़ दें, आजाद छोड़ दें। वो मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करना चाहें करें, घरों में इबादत करना चाहें करें। आप किसी को जबरदस्ती इबादत नहीं करा सकते भाई, वो करेंगे भी नहीं, लिहाजा उसका कोई फायदा नहीं दिख रहा है। जो नबवी तरीका है उसी नबवी तरीके पर हम लैलतुल क़द्र को गुजारने की कोशिश करें। जी आइए असल मौजू को देखते हैं। आज लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र तो नहीं कह सकते हैं, आज आखिरी आशरे की पहली ताक रात है। और आपको मैं ये बता दूं कि आज भी लैलतुल क़द्र हो सकती है,
जो लोग ये समझ बैठे हैं कि लैलतुल क़द्र सिर्फ क्या है 27वीं को होती है, 27वीं को बड़ी धूमधाम से लोग जागते हैं, नात कव्वाली वगैरह वगैरह तमाशा करते हैं, 21वीं को भी लैलतुल क़द्र हो सकती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 21वीं रात को लैलतुल क़द्र वाक़े भी हुई है। आपको एक दलील बताता हूँ, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे का एतिकाफ करते थे, बल्कि शुरू में आप क्या है दरमियानी हिस्से का भी आप एतिकाफ किए, यानी 10 से 20 का भी एतिकाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया एक साल। उसके बाद कहा कि जब 21वीं रात थी, जिस सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ से निकले, तो आपने कहा कि जो शख्स एतिकाफ मेरे साथ एतिकाफ में जो लोग थे वो आखिरी आशरे में भी एतिकाफ करें। अब क्या है दरमियानी हिस्से में बैठे थे, दूसरे आशरे में एतिकाफ बैठे थे, लेकिन जब 21वीं को निकले आप 21वें रोजे को, तो आपने कहा जो लोग मेरे साथ एतिकाफ में थे वो आखिरी आशरा भी एतिकाफ करें, क्योंकि मुझे दिखलाया गया है उस रात को, यानी कौन सी रात में लैलतुल क़द्र होती है वो मुझे दिखलाया गया, फिर मुझे भुला दिया गया, और मैं देख रहा हूं कि मैं पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूं, पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूं, लिहाजा तुम लोग आखिरी आशरे में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, और खास तौर पर आखिरी आशरे की ताक रातों में तलाश करो। सहाबी अबू सईद खुदरी कहते हैं कि उसी रात में बारिश हुई। कौन सी रात में? 21वीं रात में बारिश हुई। और जो मस्जिद थी वो किस चीज की थी मस्जिद नबी उस वक्त? यही खजूर के दरख्त क्या पत्ते थे, यही सब छाल घास, यही सारी चीजें थी, उसी से उसकी छत बनी थी। तो कहते हैं कि फवा कफल मस्जिद फबा सूरत आइना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जबहती अथर अलमाई वत्तीन मिन सुबही 21। तो हम लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फजर की नमाज जब आप पढ़ा कर निकले तो हम लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर मिट्टी और पानी का असर है, क्योंकि पानी रिस कर मस्जिद में चीता था ना, और मस्जिद क्या है मिट्टी की थी, उस पर ना तो कोई कालीन थी ना हसीर थी, कुछ नहीं, तो मिट्टी है। तो बारिश हुई, जोरों की बारिश हुई, और पानी टपक टपक कर नीचे चूता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सजदा किया तो पेशानी पर आपके मिट्टी और पानी लगा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या कहा? मैं देखा हूं कि वो जो लैलतुल क़द्र है वो मैं पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूं। सहाबी सुबह देख रहे हैं कि आपकी पेशानी पर पानी और मिट्टी लगे हुए, कीचड़। इसका मतलब यह हुआ कि 21वीं रात भी लैलतुल क़द्र हो सकती है, शबे क़द्र 21वीं रात को भी हो सकती है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुई है। समझ रहे हैं? तो ये कोई मत समझे कि 27वीं ही रात को सिर्फ लैलतुल क़द्र होती है, ये गलत नजरिया है और गलत तरीका है। हर ताक रात को अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए, और उससे बेहतर तरीका है कि आखिरी 10 रातों को जिंदा करना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, आयशा रावी हदीस है, कान इदा दखल आश्र, जब आखिरी आशरा शुरू हो जाता, शद्द मिज़रहु, तो आप अपनी कमर कस लेते, व अहया लैलहु, और अपने घर वालों को भी आप रातों को जिंदा करते। जिंदा करने का मतलब क्या हुआ? यानी अपनी इबादतों के जरिया आप रात को जिंदा करते, रातों को जागते, और अपने घर वालों को भी जगाते, खुद भी इबादत में रात गुजारते और अपने घर वालों को, अपनी बीवियों को भी जगाते। और दूसरी रिवायत में आता है कि आखिरी आशरे में आप इतनी इबादत करते, इतनी मेहनत करते, जितनी इबादत या जितनी मेहनत आप दूसरे आशरों में या दूसरे दिनों में नहीं करते थे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। मेरे भाइयों, लैलतुल क़द्र जो है, इसको अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा दिया है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों दिया, उसमें बहुत सारे उलमा के अक़वाल हैं। अलबत्ता आप ये समझ लें, अल्लाह जिसको चाहता है उसको फजीलत और बरतरी अता करता है, जमान के हिसाब से, मकान के हिसाब से। आप देखें जो औकात हैं, सारे औकात बराबर नहीं है।
कुछ वक्त से अफजल है। अब रात का आखिरी पहर जो है वो सारे हिस्सों से अफजल है, क्योंकि अल्लाह आसमान दुनिया पर आता है, उस वक्त अल्लाह आसमान दुनिया पर आता है। गोया कि इन 24 घंटों में जो रात का आखिरी वक्त होता है वो सारे वक्त से बेहतर होता है। इसी तरीके से मकान के हिसाब से आप देखें, सारी जगहें बराबर नहीं है। इस दुनिया में जो जगहें हैं, जो मकानात हैं, उनमें सबसे बेहतर जगह कौन सी है? मस्जिद है। अल्लाह का घर ये सबसे अफजल जगह है। और उन मसाजिद में सबसे बेहतर मस्जिद क्या? मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन औकात में भी एक दूसरे को फजीलत देता है, और मकान के हिसाब से भी अल्लाह जिसको चाहता है फजीलत और बरतरी अता करता है। आप देखें, महीनों में सबसे बेहतर और सबसे अफजल महीना कौन सा है? रमजान का महीना है। रातों में सबसे अफजल रात कौन सी है? लैलतुल क़द्र है। हफ्तों के अय्याम में सबसे बेहतर यौम कौन सा है? जुमा का दिन है। और अशरों के हिसाब से सबसे बेहतरीन अशरा कौन सा है? ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन है। ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन ये सबसे अफजल है। तो अल्लाह जिसको चाहता है फजीलत और बरतरी अता करता है, ये अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह जिसे चाहे उसको बढ़ा दे और अल्लाह जिसे चाहे उसे जलील और रुसवा कर दे। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया से एक मरतबा सवाल किया गया कि लैलतुल क़द्र बेहतर है या क्या है? रमजान का आखिरी हिस्सा अफजल है या लैलतुल इसरा यानी लैलतुल मेराज, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमानों की सैर कराई गई थी, अल्लाह के पास जब वो गए थे, वो बेहतर है? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह ने बड़ा हकीमाना जवाब दिया। कहा, नबी के हक में मेराज की रात बेहतर है और उम्मत के हक में ये आखिरी आशरा बेहतर है, क्योंकि नबी की तो इबादतों की कोई इंतहा ही नहीं है। तो नबी के लिए तो वही सबसे बड़ा एजाज था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 7 आसमानों के ऊपर बुलाया, जन्नत की सैर कराई, जहन्नम की सैर कराई, अजीब व गरीब मनाजिर वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे। तो नबी के हक में इसरा यानी मेराज की रात बेहतर है, लेकिन उम्मत के हक में क्या है? लैलतुल क़द्र या आखिरी आशरा ही बेहतर है। और इसी तरीके से एक दूसरा सवाल जब किया गया कि भाई ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन बेहतर हैं या रमजान के आखिरी 10 दिन बेहतर हैं, तो उन्होंने जवाब क्या दिया? कहा कि रही बात दिनों की तो ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 दिन बेहतर हैं, और रही बात रातों की तो रमजान के आखिरी 10 रातें बेहतर हैं, क्योंकि इस रात में लैलतुल क़द्र आती है। इन आखिरी रातों में लैलतुल क़द्र की रात आती है, जो कि बड़ी आज़मत और रहमत और बरकत वाली आयत है। हाज़रीन गिरामी, इस रात को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं? लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं? आखिर दूसरा नाम क्यों नहीं है? उसकी बड़ी सारी वजहें लोगों ने बतलाई हैं। एक वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर यानी शब क़द्र के अंदर आने वाले साल के अंदर क्या होगा, लोगों की कितनी रोजियां होंगी, लोगों की उम्र कितनी होंगी, साल भर का जो बायोडेटा है अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी रात को तैयार करता है। इसी लैलतुल क़द्र को साल भर का पूरा शेड्यूल अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान का तैयार करके भेजता है फरिश्तों के पास। अल्लाह ने क्या कहा? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इसी में यानी इसी रात में हर मुहकम चीजों का फैसला किया जाता है। हर मुहकम चीजों का इस रात के अंदर फैसला किया जाता है। पूरे साल भर की तकदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी रात को लिख देता है। देखिए, जो तकदीर लिखी जाती है उसकी 3 सूरतें। एक तकदीर अज़ली होती है, हमेशा हमेश की तकदीर। वो कब लिखी गई है? हमने कहा जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया है। सब की जिंदगी भर के एक एक हरकत, एक एक सांस को अल्लाह ने लिख दिया है। कब? जमीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 साल। इसको तकदीर अज़ली कहते हैं। दूसरी चीज तकदीर उमरी होती है। तकदीर उमरी क्या होती है? जब इंसान मां के पेट में होता है तो अल्लाह 4 महीने के बाद यानी 120 दिन के बाद पूरी जिंदगी की तकदीर उसके लिख देता है। वो कितना जिएगा, कब मरेगा, क्या खाएगा, कितना खाएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नेक होगा कि फाजिर और फासिक होगा, ये दूसरी तकदीर। इसको तकदीर उमरी, उम्र भर की तकदीर अल्लाह मां के पेट में लिख देता है।
और तीसरी तकदीर तकदीर सनवी, साल भर की तकदीर, साल भर की तकदीर भी अल्लाह लिखता है। और कब लिखता है? इसी रात को, यानी लैलतुल कद्र जो रात होती है, शबे कद्र जिसको हम कहते हैं, उस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन साल भर की तकदीर इंसान की लिख देता है कि साल भर में उसको कितनी रोजी मिलेगी, साल भर वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी सारी चीजें साल भर की अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में फैसला कर देता है। इस वजह से इसको लैलतुल कद्र यानी तकदीर वाली रात, कौन सी रात? तकदीर वाली रात। और दूसरी वजह लोगों ने बतलाई, वसुम्मिया लिअज़मतिहा व क़द्रिहा व शरफिहा, इस रात की अज़मत और इस रात की शरफ के वजह से, उसके कद्र की वजह से इस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता। क्यों? क्योंकि ये रात बड़ी अजीम है, बड़ी अज़मत वाली ये रात है, बड़ी शरफ वाली रात है, बड़े कद्र और मकाम वाली ये रात है। इस वजह से इस रात को लैलतुल कद्र कहते हैं। और बाद लोगों ने कहा क्योंकि इसमें जो इबादतें की जाती हैं, जो नेकियां की जाती हैं, वो बड़ी कद्र वाली नेकियां होती हैं। वो क्या है? बड़ी सवाब वाली नेकियां होती हैं, बड़ी मकाम और मर्तबे वाली नेकियां होती हैं। इसी वजह से इस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है। और यह हकीकी बात है, क्योंकि इस रात में जो इबादतें की जाती हैं, इस रात में जो नेकियां की जाती हैं, उसकी कद्र मंजिलत बहुत अजीम है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इस वजह से इसको लैलतुल कद्र कहा। और अबू बकर अल वर्राक ने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी, कहा कि जिसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं होता, जिसकी कोई कद्र और कीमत नहीं होती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और जिसका कोई मकाम और मर्तबा समाज और माशरे में नहीं होता है, अगर वो इस रात को अल्लाह की इबादत में गुजार दे, अहयाहा ज़ा क़द्रिन, अल्लाह की इबादत में इस रात को गुजार दे, तो कद्र मंजिलत वाला हो जाता है, वो कद्र वाला हो जाता है, वो मकाम और मर्तबे वाला हो जाता है अल्लाह की निगाह में। जिसकी कोई कद्र कीमत नहीं होती, जिसका कोई मकाम और मर्तबा नहीं होता, जिसका कोई बुलंद मर्तबा नहीं होता, इस रात को अगर अल्लाह की इबादत में जिंदा कर दे तो क्या हो जाता है? बड़ी कद्र वाला आदमी हो जाता है, बड़े मकाम और मर्तबे वाला वो आदमी हो जाता है। इसी तरीके से बाद लोगों ने कहा क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी कद्र और मंजिलत वाली किताब नाजिल की, और कद्र वाले, बड़े कद्र व कीमत और बड़े क्या है अजीम रसूल पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात को नाजिल की। इस बुनियाद पर इस रात को लैलतुल कद्र कहा जाता है। बाज़ लोगों ने कहा क्योंकि इसमें बड़े बड़े फरिश्ते, जिनका बड़ा मकाम व मर्तबा, जिनकी बड़ी कद्र है, जिनकी बड़ी कद्र है, वो सारे बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते इस रात को नाजिल होते हैं। इस वजह से इसको कद्र वाली रात कहा जाता है। और कुछ लोगों ने कहा क्योंकि इस रात के अंदर हर तरह की खैर व बरकत नाजिल होती है, मग़फ़िरत नाजिल होती है, इस वजह से इसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। और बाद लोगों ने कहा, सहल, इमाम सहल कहते हैं, लिअन्नल्लाह क़द्दर फ़ीहा रहमत अलल मुमिनीन, क्योंकि इस रात में अल्लाह ने मोमिनों पर अपनी रहमत को मुक़द्दर कर दिया है, इस वजह से तकदीर वाली यानी कद्र वाली रात हो गई। और एक सबसे बड़ी वजह और हकीकी वजह भी है कि ये रात जो है, रात कह रहा हूं, जमीन जो है, जो लैलतुल कद्र जो रात होती है, उस रात को जमीन तंग हो जाती है। कैसे तंग हो जाती है? यानी अल्लाह के इतने फरिश्ते इस रात में नाजिल होते हैं कि जमीन के अंदर जगह नहीं बचती है। हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, आप कहते हैं, इन्नल मलाइकता तिलकल लैल फिल अर्द अक्सर मिन अददिल हसा। आप अगर एक मुट्ठी मिट्टी उठाएं, यहां से आपकी मुट्ठी में अगर वो छोटे छोटे जो कंकर होते हैं, आप उसको गिन सकते हैं? एक मुट्ठी सिर्फ मिट्टी उठाएं, उसमें कितने कंकर आएंगे? गिन नहीं सकते, वो छोटे 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 कितने कंकर होते। लेकिन आपको बतलाऊं कि पूरी सरजमीन में कितने कंकर होंगे, कितने छोटे छोटे पत्थर कितने होंगे, कोई गिनती ही नहीं है। उससे कहीं ज्यादा फरिश्ते इस रात में नाजिल होते हैं कि जमीन तंग हो जाती है उनके नुज़ूल से, जमीन के अंदर जगह नहीं बचती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लैलतुल कद्र में फरिश्ते जमीन के कंकर से भी ज्यादा नाजिल होते हैं।
زمین کے پتھرات اور ذرات سے بھی زیادہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر تنگ والی رات کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور رہی بات اس کی فضیلت کی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اتنی عظمت، اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی رحمت اور برکت والی رات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی فضیلت کے لیے ایک مکمل سورہ ہی نازل کر دی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ پوری سورت اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مکمل ایک سورت نازل کر دی، جو کہ اس رات کی عظمت کے لیے، اس رات کی فضیلت کے لیے ہی کافی ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین سال بھر کی موتوں کا، سال بھر کے رزق کا، اس ساری چیزوں کا فیصلہ اللہ رب العالمین اسی رات میں کرتا ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اگلا سال اگر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں، نیک اور متقی بننا چاہتے ہیں آنے والی زندگیوں میں، تو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس دعا کی نتیجے کی وجہ سے، ہماری اس عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا اگلا سال جو ہمارے حق میں تقدیر لکھے وہ اچھی تقدیر لکھے۔ سال بھر کی تقدیر اللہ جو لکھتا ہے اس رات کو، ظاہر سی بات ہم روڈوں پر گھومتے ہوئے پھریں ملیں گے فرشتوں کو، تو کیا رپورٹ فرشتے اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہاں وہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھہاکا لگا رہے تھے، وہاں کھانا بن رہا تھا، وہاں 10-15 لوگ چاول کو پکتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہی فرشتے رپورٹ پیش کریں گے؟ کیا رپورٹ جائے گی ہماری اور آپ کی؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا سال بھی ہمارا اچھا گزرے، آنے والے سال کی جو زندگی وہ اچھی گزرے، کتاب و سنت کے مطابق گزرے، اللہ کی نیکیوں میں، اللہ کی بندگی میں گزرے، تو اس رات کو ہمیں عبادت کے ذریعہ زندہ کرنا ہوگا۔ اس رات کو ہمیں اللہ کی نیکیوں اور اللہ کی اطاعت کر کے اس رات کو ہمیں بیدار رہنا ہوگا، تب جا کر ہمارے ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کی جو زندگی ہے، اگلے سال کی جو ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہے اس رات میں، وہ تقدیر ہماری اچھی اور بہتر ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے ایک بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، جس نے لیلۃ القدر کو نماز پڑھتے ہوئے گزار دیا، کس طرح؟ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے کہا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہی ایک حدیث کافی ہے کہ نبی کا طریقہ کیا تھا طاق راتوں میں اور ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ نبی نے کون سی چیز کرنے کے لیے طاق راتوں میں کہا؟ آپ نے امت کو ترغیب دلائی کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو جس شخص نے لیلۃ القدر کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کس چیز سے گناہ معاف ہوں گے؟ کیا روڈوں پر ٹہلنے کی وجہ سے گناہ معاف ہوں گے؟ کہ وہاں بیٹھ کر فلم بازی کرنے سے گناہ معاف ہوں گے؟ دو چار احباب بیٹھ کر غیبت اور چغل خوری اور ہنسی مذاق کرنے سے گناہ معاف ہوں گے؟ کیا کھانا بنانے پکانے میں وہ گناہ معاف ہوں گے؟ بتلائیے کس چیز کی گناہ، کس بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ جس نے قیام اللیل کیا، جس نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے مسجد میں ہو۔ ہم کو کس طرح لیلۃ القدر گزارنا ہے؟ اگر گناہوں کو معاف کرانا ہے، اپنے گناہوں کو دھلانا ہے، اپنے نامہ اعمال سے اپنے گناہوں کو صاف کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلۃ القدر کو قیام اللیل کرو، لیلۃ القدر کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھو، لیلۃ القدر کو اللہ کے لیے عبادت میں گزارو، تب جا کر آپ کے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے۔ نبی نے صرف ایک عمل بتلایا ہے، نبی نے صرف ایک عمل بتلایا ہے، من یقم لیلۃ القدر، بعض روایتوں میں آتا ہے جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا، یا جو لیلۃ القدر کو قیام کرتا ہے، تراویح اور قیام اللیل کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے جو مقصد اصلی ہے، جو عبادت ہم کو ان طاق راتوں میں کرنی چاہیے، جو عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور جو امت کو کرنے کے لیے کہا ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے۔ بعض مسجدوں میں سننے میں آتا ہے
कि 2 बजे 2:30 बजे तरावी की नमाज शुरू करते हैं और इमाम को यह ताकीद की जाती है, मुल साहब 2:30 बजे शुरू हो रही, 3:30 के अंदर अंदर खत्म कर देना, 3:30 के अंदर मुल साहब खत्म कर देना। सर बतलाइए, इस रात को और लंबा करना चाहिए ना क़ियामुल लैल, लेकिन ताक रातों में उस दीगर दिनों के बिल मुकाबिल कम वक्त क्या है क़ियामुल लैल के लिए दिया जाता है। दीगर रातों में कितना वक्त लगता है? 1.25 घंटा तकरीबन लगता है वितर के साथ, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। लेकिन ताक रातों में जहां हमको लैलतुल कद्र हासिल करना है, लैलतुल कद्र की रहमतों और बरकतों को हासिल करना है, उसमें 1 घंटा से ज्यादा इजाजत नहीं है इमाम साहब को तरावी पढ़ाने की। नहीं मुल साहब 3:30 तक खत्म करना। बताइए, ताक रात का यह मकसद है कि आधा घंटा तरावी पढ़े, पौने घंटा तरावी पढ़े। क़ियामुल लैल और ज्यादा होना चाहिए, 2 घंटा होना चाहिए, तो आप 1 घंटे की इजाजत दे रहे हैं इमाम साहब को है? नबी भी तरीका हम बदल दे रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से हम इबादत करना चाहते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते नबी ने कैसे इस रात में इबादत की है, नबी ने ये रात कैसे जागकर गुजारी है, नबी ने इसमें क्या अमल किया, हमको इससे कोई परवाह नहीं है। हम अपने हिसाब से इबादत करना चाहते हैं। हम 2 बजे पढ़ेंगे, हम 4 बजे पढ़ेंगे, हम 10 बजे पढ़ेंगे, हम 12 बजे पढ़ेंगे, हम अपने हिसाब से इबादत करना चाहते हैं। अपनी मर्जी के हिसाब से इबादत करेंगे तो क्या वो इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी? बतलाइए मुझे। होगी? अपनी मर्जी से हम चलेंगे, अपनी ख्वाहिशात के हिसाब से हम इबादत करेंगे, हम जैसा चाहेंगे वैसा पढ़ेंगे। ये तो माबूद आपकी ख्वाहिशात हैं, आपका नफ्स आपका माबूद है, अल्लाह माबूद नहीं है। अगर हम अल्लाह के लिए पढ़ना चाहते हैं और नबी की सुन्नत के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो जो वक्त मुख्तयन किया गया है और जिस कैफियत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इबादत को करने के लिए कहा है और जब तक करने के लिए कहा है, हमको उसी तरह करना है, उसी वक्त में करना है और जैसे करने के लिए कहा गया है वैसे ही करना पड़ेगा। तब जाकर ये इबादत अल्लाह के लिए होगी, तब जाकर वो इबादत सुन्नत के मुताबिक होगी। लेकिन हम अपनी मर्जी के हिसाब से अगर इबादत करना चाहें, करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सवाब मिलता नहीं। ये जान लीजिए, इबादत में नफ्स की पैरवी नहीं होनी चाहिए, इबादत में ख्वाहिशात की इत्तिबा नहीं होनी चाहिए। अगर हम इबादत कर रहे हैं और हम चाहते हैं इसकी जज़ा मिले, इसका सवाब मिले, इसका इनाम मिले, तो अल्लाह के लिए करें और नबी ने जैसे किया वैसे करें, तब जाकर उस इबादत का अज्र सवाब हमको हासिल होगा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। क़ियामुल लैल करके हम इस रात को हमको जिंदा करना है, तरावीह के जरिया हमको इस रात को जिंदा करना है, दुआ और मुनाजात के जरिया इस रात को हमको जिंदा करना है, क़िराअत कुरान के जरिया इस रात को हमें जिंदा करना है, जिक्र व अस्कार के जरिया इस रात को हमें जिंदा करना है। इसके अलावा किसी और अमल के जरिया हम अगर रातों को जागते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो लैलतुल क़द्र की अहमियत और बरकत को और रहमत को हासिल नहीं कर सकता है, वो लैलतुल क़द्र की फजीलत को नहीं पा सकता है। वो रात भर जागता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जिनको लैलतुल क़द्र में इबादत नहीं करनी है, तिलावत नहीं करनी है, जिक्र व अस्कार नहीं करना है, दुआ व मुनाजात नहीं करना है, क़यामुल लैल नहीं करना है, उसके हक में सबसे बेहतर यह है कि वो घर में जाके सो जाए, घर में जाके सो जाए, सबसे बेहतर चीज उसके लिए है। क्योंकि अगर वो इन सारी चीजों में रात नहीं गुजारेगा तो बैठ के गुफ्तगू करेगा, और गुफ्तगू करेगा जाहिर सी बात है सवाब तो मिलता नहीं, गुनाह मिलता। गुफ्तगू क्या करेंगे? किसी की अच्छाइयां बुराई बयान करेंगे, किसी की बुराइयां बयान करेंगे, किसी की गीबत करेंगे, किसी की चुगलखोरी करेंगे, कुछ झूठ भी हमारी जुबान से निकलेगा, किसी का मजाक करेंगे। यही तो होगा। जो हम जिक्र व अस्कार नहीं करेंगे, तिलावत नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, क़ियामुल लैल नहीं करेंगे, तो आखिर हम बैठकर करेंगे क्या? कम से कम सो जाएंगे तो गुनाह से तो बच जाएंगे, सो जाएंगे तो गुनाह से तो बच जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है जिसको ये रात जागनी है वो अल्लाह की इबादत के जरिया जागे, नहीं तो जाके सो जाओ। ये मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, ये जान लीजिए, ये कोई गलत बात नहीं, ये बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। क्योंकि इंसान अपने आप को गुनाहों से महफूज कर लेगा, झूठ के गुनाह से महफूज हो जाएगा, गीबत के गुनाह से महफूज हो जाएगा, चुगलखोरी के गुनाह से महफूज हो जाएगा, लोगों के दामने तकदीस को, लोगों के इज्जत से खिलवाड़ करने से वो अपने आप को बचा लेगा।
سو جائے گا گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا. نہیں تو اگر جاگنا ہم کو تو اللہ کی عبادت کر کے جاگیں, نہیں تو سو جائیں میرے بھائیوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا کہ لیلۃ القدر کو جس نے قیام اللیل کیا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا, سارے گناہ معاف ہو جائیں گے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ بیک وقت پورا 30 پارہ 114 سورتیں اللہ رب العالمین نے اسی رات ہی کو نازل کیا ہے. پورا قرآن کون سی رات میں نازل ہوا ہے؟ لیلۃ القدر میں. اللہ نے کہا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کہیں اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو مبارک یا بابرکت رات میں نازل کیا ہے. تو پورا 30 پارہ 114 سورتیں جو ہیں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر ہی میں نازل کیا ہے. بیک وقت لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر 30 پارہ اللہ نے نازل کیا. اس کے بعد 23 سالہ جو نبی کی زندگی ہے, جب جہاں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑی, جتنی صورتوں کو, جتنی آیتوں کی, اللہ دھیرے دھیرے نازل کرتا رہا. تو بیک وقت پورا قرآن کب نازل ہوا؟ انہی لیلۃ القدر میں, شب قدر میں اللہ نے نازل کیا, جو کہ لیلۃ القدر کی بڑی عظمت کے لیے, بڑی فضیلت کے لیے یہی صرف کافی ہے کہ پورا قرآن اللہ نے اسی رات کو نازل کیا ہے. میرے بھائیوں, ایک اہم چیز کہ اس رات کو اللہ نے اتنی اہمیت کیوں دی؟ آخر دوسری بھی راتیں ہو سکتی تھی, اللہ اس کا بھی مقام و مرتبہ کو بڑھا سکتا تھا. اس رات کو اللہ نے اتنی عظیم رات کیوں بنا دیا, اتنی بابرکت اور رحمت والی رات کیوں بنا دیا؟ لوگوں نے بڑی وجہیں بتلائی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا, امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر بلاغات مالک جس کو کہتے ہیں, اس کی کوئی سند نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ دیگر عمروں کی امتیں بہت زیادہ ہوا کرتی, اور یہ بات صحیح بھی ہے. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کے کل پرسوں واقعہ بیان کیا گیا, 950 سال تو صرف اپنی امت کو دعوت دیتے رہے, اپنی قوم کو صرف 950 سال دعوت و تبلیغ کرتے رہے. گویا کتنی عمر ان کی رہی ہوگی, 950 سال صرف دعوت و تبلیغ کیوں کی ہے. اسی طرح بہت سارے انبیاء کی 200 400 250 300 1000 سال اس طرح عمریں ہوا کرتی تھی. اور اس امت کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بین 60 و 70, 60 سے 70 کے درمیان, 60 سے 70 کے درمیان. تو گویا کہ 2-3 حصہ بھی ہمارا نہیں ہے. اللہ نے یہ لیلۃ القدر کو یہ مقام دیا, یہ فضیلت دی, یہ مرتبہ دیا کہ جو اس رات کو اللہ کی عبادت میں گزار دے گا, تو جو 1000 سال عبادت کر کے جن لوگوں نے اتنی نیکیاں کمائی اور اتنی جد و جہد, اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھا کر 1000 سال عبادت ہے کہ تب جا کر ان کو اتنی نیکیاں ملی. اس امت کی فضیلت کے لیے, اس امت کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس رات کو اتنی عظیم رات بنا دیا کہ ایک رات بھی اگر کسی نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا تو کیا ہے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 راتوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا اجر و ثواب اس کو ملے گا, 1000 راتوں سے. کچھ لوگ کہتے ہیں 83 سال 4 مہینے, بکواس. 83 سال 4 مہینے اللہ کی رحمت کی کوئی حد ہے؟ اللہ کی برکت کی کوئی حد ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف, 1000 راتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے, کہیں زیادہ بہتر ہے. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ 1000 رات ہی سے بہتر, 1000 راتوں سے بہت زیادہ بہتر ہے. اس کی کوئی حد نہیں ہے کتنا ثواب اللہ رب العالمین دیتا ہے. گویا کہ 1000 سال جن کی عمریں پائی, انہوں نے عبادتیں ریاضتیں کر کے اتنا اجر و ثواب حاصل کیا. ایک رات اگر اس امت کا کوئی مومن قیام اللیل اور عبادت کے ذریعہ بیدار رہتا ہے تو اتنا اجر و ثواب ایک رات میں صرف پا سکتا ہے. بعض لوگوں نے اور بھی بے شمار باتیں, امام مجاہد نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو رات بھر قیام کرتا تھا, دن بھر روزہ رکھتا تھا, جہاد کیا کرتا تھا, 1000 مہینہ ایسے کیا ہو, اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ایک ہی رات میں وہ ساری فضیلتیں رکھ دی, اتنی اجر و ثواب, اتنی فضیلتیں ایک ہی رات میں حاصل. لیکن ہم نے کہا کہ کتاب و سنت سے صحیح سند کے ساتھ یہ ساری چیزیں ثابت نہیں ہیں. بس اس امت کے اللہ رب العالمین نے فضل میں, اس امت کے شرف میں
बेहतरीन उम्मत होने के नाते अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये खास करम है, अल्लाह का ये खास फضल है, अल्लाह का ये खास रहम है इस उम्मत पर कि अल्लाह ने एक ऐसी रात हमको दी कि अगर उस रात को हम इबादत करके जिंदा कर दें तो 1000 महीनों से कहीं ज्यादा इबादत करने से ज्यादा अजर व सवाब सिर्फ एक रात में हमको मिल सकता है। ये अल्लाह का फضल और अल्लाह का एहसान है इस उम्मत पर। ये रात दीगर उम्मतों को नहीं मिली। लैलतुल क़द्र इस उम्मत की खासियत है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मदाम में ये लैलतुल क़द्र नहीं थी, ईसा के जमाने में लैलतुल क़द्र नहीं थी। इस उम्मत को अल्लाह ने दी है लैलतुल क़द्र, इस उम्मत को रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र दी है। तो ये अल्लाह का फضल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमको एक रात ऐसी दी जो 1000 महीनों से कहीं ज्यादा इबादत करने से बेहतर है। लिहाजा इसकी अहमियत को समझो, इसको गनीमत समझो, इससे फायदा उठाने की कोशिश करो, ना कि गैर शरई कामों में अपने आप को मसरूफ रखने की कोशिश करें। हाज़रीन गिरामी, इसी तरीके से हमने कहा कि इस रात की अहमियत और फजीलत के लिए यही काफी है। अल्लाह ने कहा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अल्लाह ने क्या कहा कि फरिश्ते जिब्रील, यानी इतने फरिश्ते, अभी हमने कहा जमीन के कंकर पत्थर से भी ज्यादा फरिश्ते इस रात में नाजिल होते हैं, और उसके साथ साथ फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी इस रात में नाजिल होते हैं, रहमत लेकर, बरकत लेकर, खैर लेकर इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं। जाहिर सी बात है फरिश्ते इस रात में इतनी कसरत से नाजिल होते हैं, तो फरिश्ते जब नाजिल होंगे तो रहमत और बरकत ही लेकर नाजिल होंगे। इसी तरीके से ये सलामती वाली रात होती है। फज्र तक ये रात सलामती की रात होती है, अमन और सुकून की रात होती है। इसमें बुराइयों से आदमी को परहेज करना चाहिए, क्योंकि इमाम मुजाहिद रहमुल्लाह कहते हैं हिया साअतुन ला यस्ततीउ शैतानु अन यअमल फीहा सुअन औ यअमल अदा। ये ऐसी घड़ी होती है लैलतुल क़द्र की, ऐसी घड़ी होती है जिसमें शैतान कोई भी बुरा काम करने की ताकत नहीं रखता। उस घड़ी के अंदर शैतान कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इतने फरिश्ते नाजिल होते हैं, और जहां फरिश्ते रहेंगे वहां शैतान नहीं रहता। जहां फरिश्ते रहते वहां शैतान नहीं रहता। ग़ज़वे खंदक में आपने देखा ना, जब फरिश्ते नाजिल हुए तो इब्लीस जो सुराका इब्ने मालिक या मालिक इब्ने सुराका की शक्ल में आया था, मुशरिकीन मक्का की तरफ से उनको उभार कर सबको जमा करके लाया था, जब देखा भाई फरिश्ते इनकी मदद के लिए आ रहे हैं, वो दुम दुबा के भाग गया। वो फरिश्तों को देखा। तो जहां फरिश्ते होंगे वहां शैतान नहीं रहेगा, और जब इतनी कसरत से फरिश्ते नाजिल होते हैं तो शैतान कहां रहेगा। लेकिन हमारा नफ्स शैतान से कहीं आगे बढ़ चुका है। हम लैलतुल क़द्र में भी बुरा काम कर लेते हैं, हम ताक रातों में भी बुराइयों से अपने आप को बाज नहीं रख पाते। अब सोचिए हमारा नफ्स कितना गंदा हो चुका है, हमारा नफ्स गुनाहों में कितना मुलविस हो चुका है कि शैतान भी नहीं रहता फिर भी हम गलत काम करते हैं, शैतान भी नहीं रहता फिर भी गलत काम हमसे होता है। हाज़रीन गिरामी, इमाम शाफी रहमुल्लाह कहते हैं तस्लीमुल मलाइकति लैलतुल क़द्र अला अहलिल मसाजिद हत्ता यतलअल फज्र, कि जो लोग मस्जिदों में बैठकर अल्लाह की इबादत में रात गुजारते हैं, फरिश्ते उन पर सलामती की दुआ तुलुए फज्र तक करते रहते हैं। जो फरिश्ते नाजिल होते हैं, फरिश्ते चक्कर लगाते हैं, जो मस्जिदों में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, क़यामुल लैल कर रहे होते हैं, तिलावत कर रहे होते हैं, जिक्र व अस्कार कर रहे होते हैं, फरिश्ते तुलुए फज्र तक उन पर अल्लाह की रहमत और बरकत की दुआ करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनकी सलामती की दुआ करते हैं। उन लोगों के लिए नहीं जो घूमते हैं, उनके लिए कोई दुआ नहीं है फरिश्तों की। जो मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने घरों में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, सलामती की दुआ, रहमत और मग़फ़िरत की दुआ फरिश्ते तुलुए फज्र तक करते रहते हैं। और मेरे भाइयों, ये उम्मत के साथ ये रात खास है, ये बाबरकत रात है, ये रहमत वाली रात है, आज़मत वाली रात है। इसी बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रात को पाने के लिए, हालांकि आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ है और हमेशा आप अल्लाह की जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले हैं, लेकिन इस रात की आज़मत के खातिर, इस रात की फजीलत के खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी एतिकाफ
एतिकाफ किया करते थे ताकि इस रात को पा सकें, उस रात की रहमतों और बरकतों को समेट सकें, उस रात की फजीलत को हासिल कर सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की अज़मत की वजह से लैलतुल क़द्र को पाने के लिए एतिकाफ किया करते थे, अपने घर वालों से दूर होकर मस्जिद में एक जगह बैठकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था मेरे भाइयों। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इस रात को अल्लाह की इबादत में जिंदा करें, अल्लाह की इताअत और बंदगी करके इस रात को जागे, ना कि गैर शरई कामों में इस रात को सर्फ करें। अब इसकी क्या अलामत हो सकती हैं, वो अलामत बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उसकी कई अलामतें, कुछ अलामतों का ताल्लुक उसी रात से है और कुछ अलामत का ताल्लुक दिन से है, अगले दिन से है। रातों का जहां तक रहा ताल्लुक, उबई बिन काब रहमतुल्लाह, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिसका ताल्लुक दिन से है यानी अगले दिन से। आपने कहा कि अन्ना शम्स ततलु सुबैहतहा ला शुआ लहा, जिस रात को लैलतुल क़द्र होती है, जब अगले दिन सुबह सूरज तुलू होता है, तो तुलू जब सूरज होता है तो उसके अंदर शुआ नहीं होती, किरणें नहीं होती, हरारत नहीं होती। सूरज जब निकलता है ना तो किरणें आती है नहीं कि नहीं, रोशनी आती है ऐसा। तो कह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसकी शुआ नहीं होती, किरणें नहीं होती, उसके अंदर उतनी रोशनी नहीं होती। जैसा कि दूसरी हदीस के अंदर आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी हदीस है, लैलतुल क़द्र लैलतुन तलक़ा ला हार्र वला बारिदा, जो लैलतुल क़द्र की रात होती है वो बड़ी मुअतदिल रात होती है, ना उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है। बहन ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा ठंडी होगी, मुअतदिल रात होगी। आपने कहा तुस्बिहु शम्सु यौमन हमारा दईफा, और सुबह में जब सूरज शुरू होगा तो सुर्ख होगा, बिल्कुल कमजोर होगा, बिल्कुल कमजोर होगा, मतलब उसकी शुआएं नहीं होंगी, उसके अंदर हरारत नहीं होगी, तपिश नहीं होगी, गर्मी नहीं होगी जब सूरज सुबह में तुलू होगा। और दूसरी रिवायत में वासिला इब्न अस्का कहते हैं, लैलतुल क़द्र बलजा ला हार्रा वला बारिदा, लैलतुल क़द्र जो होती है वो बड़ी मुअतदिल रात होती है, ना तो गर्म ना तो ठंडी, उसमें ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी। वला युरमा फीहा बिनजमिन, एक और अलामत इसमें बतलाया, इस रात को सितारे नहीं टूटते। वो तारे टूटते हैं ना, देखते होंगे आप लोग, इस रात को तारे नहीं टूट सकते। वो शयातीन जो हैं वो क्या बातें अल्लाह फरिश्तों को बोल रहा है वो चुपके चुपके जाके सुनते हैं, लेकिन इस रात को नहीं सुन सकते। इस रात को सख्त पहरेदारी होती है, इस रात को शयातीन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो वला युरमा फीहा बिनजमिन, इस रात में तारे नहीं टूटते। और बाद लोगों ने ये बात भी बतलाई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभार लोगों, नेक लोग जो होते हैं, मुत्तकी जो लोग होते हैं, उनके ख्वाब में भी बता देता है। जैसा कि उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम हो गया था कि 27वीं रात ही को लैलतुल क़द्र है। तो इस तरह अल्लाह बता भी सकता है, लेकिन ये कोई यकीनी चीज नहीं है। ये हमने जो अभी आपको कुछ अलामतें बतलाई, और इसी तरीके से लैलतुल क़द्र जो होती है उस रात में बारिश भी हो सकती है, उस रात में बारिश भी हो सकती है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं देखता हूं कि मैं पानी और मिट्टी में यानी कीचड़ में सजदा कर रहा हूं। और वो कौन सी रात थी? 21वीं रात थी, और 21वीं रात में बारिश भी हुई थी। तो उस रात को बारिश भी हो सकती है। वो रात बड़ी मुअतदिल होती है, उस रात में गर्मी नहीं होती ना ज्यादा सर्दी होती है, उस रात में तारे नहीं टूटते, और सुबह का जो सूरज तुलू होता है उसके अंदर हरारत नहीं होती, शुआ नहीं होती, किरणें नहीं होती, वो बिल्कुल थालियों की तरह ऐसे सूरज निकलता है, बहुत सुर्ख नहीं होता है। और इसके अलावा जो बेशुमार मनगढ़ंत बातें जो लोग कहते हैं, पत्ते नहीं टूटते, कुत्ते नहीं भूखते, ये सब अजीब व गरीब बातें हैं। और इस रात के अंदर एक अजीब व गरीब रोशनी होती है, तारे जो होते हैं, सितारे जो होते हैं, वो पूरा खुलकर निकलते हैं, रोशनी होती है। लेकिन ये रोशनी यहां नहीं मालूम होती, क्योंकि यहां तो मसनूई लाइटें जल रही हैं, तो कहां से वो रोशनी हमको मालूम है? ये रोशनी वहां मालूम होंगी जहां ये ट्यूबलाइट वगैरह या ये सब लाइटें नहीं है। गोया कि हमको खेड़ों में जाना पड़ेगा, जंगलात में, तब मालूम होता कि हाँ ये जो रोशनी आज की है वो लैलतुल क़द्र की ही वजह से है। तो उस रात को जो तारे निकलते हैं, चांद निकलता है, वो मुकम्मल रोशनी उनमें होती है।
तो ये जो अजीब व गरीब समंदर का पानी मीठा हो जाता है, खारा नहीं होता, कुत्ते भूखते नहीं, दरख्त पूरे सजदे में गिरे रहते हैं, झुके रहते हैं, ये सब गैर शरई बातें हैं। किताब व सुन्नत से ये सारी चीजें साबित नहीं है। और इस रात में जो खुसूसी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई वो क्या है? हैत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल आप क्या कहते हैं अगर मैं लैलतुल क़द्र को पालूं तो क्या कहूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तुम कहो क़ूली अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। तो ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है कि अगर कोई लैलतुल क़द्र को पाले तो ये दुआ कसरत से पढ़े। लिहाजा हमें ताक़ रातों में ये दुआ जितना पढ़ सकें उतना पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। बाद लोग अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन पढ़ते हैं। ये करीमुन जो लफ्ज है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित नहीं है, लिहाजा करीम नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व तू माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। ये दुआ हमको कसरत से पढ़नी चाहिए मेरे भाइयों। तो ये चंद बातें लैलतुल क़द्र के हवाले से मैंने आपके सामने रखी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम लोगों को जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को जिंदा रखा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को बेदारी की, वैसे ही अल्लाह हम तमाम लोगों को इताक़ रातों को जिंदा रखने की, अल्लाह की इबादत करने की, अल्लाह की इताअत कर कर रात गुजारने की, रात को जिंदा रखने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।